سائٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم ایک مرتبہ پھر بات کریں گے کچھ افغان سرزمین کے حوالے سے، کیونکہ ایک طویل جنگ کا خاتمہ ممکن ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جس طرح سے امریکہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس نے وہاں پر موجود دہشت گرد عناصر کو شکست دے دی ہے، افغان سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا ہے، لہٰذا یہ امید کی جا رہی ہے کہ نیٹو یا امریکی افواج کی واپسی کے بعد افغان سرزمین پر امن برقرار رہ سکے گا۔ البتہ طالبان کا جو مختلف علاقوں میں کنٹرول حاصل کرنے کے حوالے سے اس وقت خبریں زیر گردش ہیں، جو اطلاعات سامنے آتی ہیں، خود طالبان کے اپنے جو بیانات ہیں، جو اعلانات وہ کرتے ہیں کہ کہاں کہاں ان کا کن اضلاع میں کنٹرول حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، اس حوالے سے تقریباً 90% کا وہ علاقہ بتایا جاتا ہے افغانستان کا جس پر اس وقت طالبان جو ہے وہ کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ جو مین کیپٹل ہے، جو کابل کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے یہ ماہرین کا کہنا ہے، افغان امور کے جو ماہرین ہیں یا جو مبصرین اس بارے میں رائے دیتے نظر آتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان اب 96 والے طالبان نہیں ہیں، وہ 2021 میں اس وقت رول کرنے جا رہے ہیں افغانستان میں، لہٰذا ان کی اسٹریٹجی تبدیل ہو چکی ہے، ان کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے، اور اسی تمام تر اسٹریٹجی کے تحت اس وقت طریقہ کار بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ طالبان کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ وہ قبضہ نہیں کریں گے اور وہ اس وقت افغان حکومت کو یا افغان صدر اشرف غنی کو سیاسی شہید نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ایک طریقہ کار، ایک لائحہ عمل کے تحت افغانستان کا کنٹرول حاصل کریں گے۔ اسی لیے شاید جو بیرون ممالک ان کے وفود جاتے ہیں، جو ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں، مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، وہ اسی تمام تر چیزوں میں کہ ایک آفیشیل وے میں باقاعدہ طریقہ کار کے تحت افغانستان کا کنٹرول حاصل کیا جائے۔ تو کتنا طالبان اس میں کامیاب ہو سکیں گے اور افغان کتنا اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس پر ہم آج کچھ بات چیت کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق افغان سفیر، ماہر بین الافغان امور، بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر مہمند ہمارے آج کے اس پروگرام میں موجود ہوں گے۔ ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ امریکی تاریخ میں ہوگا پہلی بار نیو جرسی کے یوگی بیرا اسٹیڈیم میں پاک بھارت کرکٹرز کے درمیان زبردست ٹاکرا۔ 13 ستمبر کو ہوگی امریکن پریمیئر لیگ کی افتتاحی تقریب۔ شائقین کے لیے ہوگا بالی ووڈ ڈانس، ڈرون شو اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ گلوکار شیر جان جنون گروپ کے نغموں سے گرمائیں گے شائقین کا لہو۔ ٹکٹوں کی بکنگ تیزی سے جاری ہے۔ You guys need to come there and support the Pakistani team. امریکن پریمیئر لیگ کی ویب سائٹ پر آج ہی اپنی ٹکٹ بک کروائیں یا پھر فون نمبر 9143401127 پر رابطہ کیجیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک کے بعد بریگیڈیئر سید نذیر مہمند ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم کچھ بات کر رہے ہیں افغانستان میں کئی سالوں سے جاری جنگ اب ختم ہونے جا رہی ہے، ایک نیا افغانستان سامنے آنے جا رہا ہے، نئے لوگ اس کا کنٹرول سنبھالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نئے تو نہیں لیکن تبدیلی وہاں پر بھی یقیناً ہونے جا رہی ہے۔ تو کیسی یہ تبدیلی ہوگی اور کیا کچھ ان سالوں میں ہوا جب وہاں پر جنگ جاری رہی، اس پر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے وقت دیا سر پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے مجھے تھوڑا سا اپنا تجزیہ دیجیے گا اور ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ افغانستان میں 2 دہائی سے جاری جنگ نے ملک کو کتنا تبدیل کیا ہے، کتنی وہاں تبدیلی آئی ہے، کن کن چیزوں میں تبدیلی آپ دیکھتے ہیں اور مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے افغانستان میں؟ جی بہت شکریہ، یہ اہم سوال بھی ہے اور ساتھ ساتھ کافی گہرا بھی ہے، کیونکہ افغانستان کی جو ہسٹری ہے اس کو اگر ہم دہائیوں میں تقسیم کریں تو یہ 2 دہائی تو امریکہ کے وار آن ٹیرر کے تحت گزرا ہے افغانستان پر خصوصی طور پر، اور اس سے پہلے جو 2 دہائیاں تھی وہ سوویت یونین کا جو افغانستان پر قبضہ ہوا تھا، آئے تھے اور پھر ان کا وڈرال ہوا تھا، اس میں گزرا ہے۔ اور اس سے پہلے جو اس کی تاریخ ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ برٹش اور ان کے افغانستان کے ڈائنامکس باقی کنٹریز جو ہے ان سے یا جو خطے کے ہیں ان سے کافی مختلف ہے، اور اسی تناظر میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا ان پر گزرا، کیا انہوں نے حاصل کیا، کہاں پر بہت کچھ تبدیلی آئی، تو افغانستان کی سوسائٹی تو بیسیکلی ٹرائبل سوسائٹی ہے، اور دوسری کہ وہاں پر کبھی بھی ایک مضبوط حکومت نہیں رہی ہے۔ تیسری بات یہ کہ موسٹلی جو چیزیں ہیں وہ ٹریڈیشنل ہے، اور جو
आबादी है वो इतनी ज्यादा तो नहीं है, अलबत्ता वो हर माउंटेन के बाद या माउंटेन के पीछे एक किंगडम है, और इनके जो सूबे हैं काफी 12 से इन तारीखी तौर पर उनकी तादाद 34 तक पहुंच चुकी है। राहदारियां भी है और फिर एथनिक डिवीजन भी है, जिसमें आप ताजिक है, उज़्बेक है, और इसके अलावा तुर्कमन्स में और पख्तून मेजॉरिटी में है। इसके अलावा शिया भी है, सुन्नी भी है, मेजॉरिटी तकरीबन 95% के लगभग सुन्नी है, थोड़े से शिया है या बाकी है। उसको देखते हुए तो मेरे ख्याल में जो अब काबुल था उसका सकाफत या वहाँ पर जो तरक्की थी या वहाँ पर जो लोगों के फारसीबान जो थे उनकी जो सोच थी वेस्टर्नाइज थी, और हमेशा वो रूल में रहे, और इसी तरह उनकी जबान भी जो दरी है, हालांकि पश्तो बहुत जगहों पर बोली जाती है। लेकिन इन सब चीजों में क्या तब्दीली आई है, मेरे ख्याल में कि ओपननेस हुई है अफगानिस्तान की, और इसके अलावा बाकी कंट्रीज की भी हुई है, क्योंकि ग्लोबल विलेज बन चुका है। दूसरी बात यह आ चुकी है कि वहां पर स्पेशली जब अमेरिका आए हैं तो उनका जो तरक्की का या वहां पर कुछ डैम्स जो बनाने थे, या इसके अलावा वहां पर कुछ अपनी जरूरत के तहत उन्होंने कुछ सड़कें बनाई है, या कुछ लोगों को जो उन्होंने रोजगार दिया हुआ है, स्पेशली जो तर्जुमान के लिहाज से, बाकी पाकिस्तान पर उनका मोस्टली इन्हिसार रहा है, तालीम के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, और आना जाना उनका ओपननेस काफी हो चुका है उस सोसाइटी की बाहर दुनिया के साथ, इसलिए कि एक तो रेफ्यूजी रहे, और दूसरी बात है कि वेस्टर्न दुनिया उनके लिए जो तालिबान के अलावा थे वो काफी खुल चुकी थी। मिडिल ईस्ट वगैरह तो पहले भी जाते थे, लेकिन अब जर्मनी और इसके अलावा अमेरिका और फ्रांस और इन ममालिक को भी, और यही बात है कि अभी उनकी एक नस्ल जो है वो अब जो तर्जुमान थे या सहूलतकार थे या अमेरिका के बाकी उसमें जब शामिल थे, तो वो बाहर जाना चाहते हैं, अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहते। लेकिन अफगानिस्तान की बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो अब भी ट्राइबल ट्रेडिशन पर और फैमिली सिस्टम पर कायम है। तालीम के लिहाज से अवेयरनेस तो आया है, वुमेन एजुकेशन, हाँ, जो आप बात करते हैं कि वेस्टर्नाइज वुमेन, तो सबसे पहले जो काबुल एंड सराउंडिंग था उसका जो वुमेन की एमांसिपेशन थी या उनका एजुकेशन था या उनके अदरवाइज जो कल्चरल वैल्यूज थे वो बड़े मुख्तलिफ थे बाकी अफगानिस्तान से, और अब भी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अफगानिस्तान की सोसाइटी में चेंजेस आई हुई है, लेकिन अब भी अफगानिस्तान की जो साइकी है ओवरऑल उसमें स्पेशली जो यूथ है या इसके अलावा बाकी जो मॉडरेट है या जो शहरों में रहते हैं उनमें एक डेमोक्रेसी का भी एक उनसर शामिल हुआ है। दूसरा एक ओपन सोसाइटी का भी उसमें खद्दो खाल नजर आते हैं, और तीसरी बात ये है कि बाकी दुनिया को अभी अवेयरनेस के लिहाज से वो डिफरेंट तरीके से देखते हैं, और स्पेशली जो पाकिस्तान ने क्रिकेट का और इसके अलावा बाकी वहां पर जो कल्चरल इश्यूज है उस पर असरात पड़े हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि जंग के दौरान हजारों अमवात हुई, कई लोग मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हुए, क्या अब तालिबान के जो कंट्रोल वाले इलाके हैं वहाँ पर भी यही कुछ सूरत हाल रहेगी? क्योंकि जो कुछ जंग जदल के दौरान रहा कि कुछ लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए, कुछ लोग हिजरत पर मजबूर हुए, और अब जब एक मरतबा फिर तालिबान कंट्रोल हासिल करने जा रहे हैं अफगानिस्तान का, तो क्या हालात में कुछ सुधार मुमकिन है या तमाम तर यही सिचुएशंस रहेंगी जो गुज़िश्ता 20 सालों से हम अफगानिस्तान की देखते हैं? देख लो, मेरे ख्याल में जो इस दफा तालिबान की जो स्ट्रेटेजी है वो 96 का और इसके अलावा 2021 का तालिब में फर्क है। ये तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम उनको डिप्लोमेटिक फ्रंट पर देखते हैं तो काफी फाल नजर आते हैं, और उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी जो अदरवाइज नेगोशिएशन में है या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, और दूसरी तौर पर उनका जो ग्राउंड पर जो उनके फाइटिंग फोर्स है, कमांड्स है, वो भी अपने तौर पर काफी फाल और मजबूत नजर आते हैं। तीसरी बात उनमें ये है कि इन्होंने इस दफा जो डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है उसमें काफी कोऑर्डिनेशन वो रखते हैं, आइसोलेशन में वो नहीं है, उनमें रबत बहुत ज्यादा है।
اس لیے کہ آپ دیکھ لیں کہ جب انہوں نے افغانستان پر اس دفعہ اسپرنگ اوفینسو انہوں نے اناؤنس تو نہیں کیا، لیکن ادروائز جب جو بائیڈن نے 11 ستمبر کو واپسی کا پکا انڈیا دے دیا، تو انہوں نے اپنی اوفینسو تیز کر دی، اور انہوں نے افغانستان کے پیریفریز جو ہے اسپیشلی وہ صوبے جہاں پر دوسرے ملکوں سے ملتے ہیں، تاجکستان سے ملتے ہیں، ازبکستان سے، ترکمانستان سے، ایران سے، پاکستان، اور اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ تو پہلے سے، اور چائنا کے ساتھ واخان کوریڈور، ان پر انہوں نے قبضہ کیا۔ اور دوسرا اس میں یہ ایلیمنٹ تھا کہ پہلے جو اتنے گروپس تھے وہاں پر، جو تاجکس تھے، ازبکس تھے، ہزاراس تھے، یا جو ندرن الائنس تھا اس کے جو خد و خال تھے، ان کو انہوں نے پہلے قبضہ کر لیا اور ان کی راہداریاں بند کر دی۔ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، اور لینڈ لاک کنٹری کے سارے جو جتنے بھی راہداریاں تھے اس کو قبضہ کر کے دو چیزیں کر لی، ایک تو اقتصادی طور پر اس کو چوک کر دیا، اور دوسرا لوگوں کا آنا جانا اپنے کنٹرول میں لے لیا کہ نہ افغانستان سے کوئی باہر جائے اور نہ کوئی اندر آئے، سوائے جو ہوائی جہازوں کے ذریعے ان کے ذریعے نکلتے ہیں۔ تیسری بات انہوں نے یہ کر لی کہ ان ممالک کے انہوں نے دورے بھی کیے، ایران میں بھی گئے، رشیا میں بھی گئے، اور رشیا کے ذریعے انہوں نے تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان ان کو پیغام دیا کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تاکہ ان کو خطرہ محسوس نہ ہو۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کر لی کہ اب افغانستان کے پولیٹیکل لیول پر انہوں نے انگیج کر لیا سارے پولیٹیکل گروپس کو بھی، اور اس کے علاوہ جتنے اتنک گروپس تھے، جس میں عبداللہ تو ظاہر ہے وہ لیڈ کر رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ قانونی جو ہے، یا اتانور ہے، یا اس کے علاوہ جو حزب اسلامی کے گلبدین کے ماتیار ہیں، یہ سارے گروپس کو انہوں نے انگیج کرنا شروع کیا تاکہ ان کے ساتھ بات چیت کے عمل کو بڑھائے، اور ساتھ ساتھ دنیا کو صاف پیغام یہ دیا کہ وہ 90 دن کے لیے سیز فائر بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں کچھ انہوں نے دو چیزیں رکھی، ایک تو پریزنر کا جو 7,000 مانگ رہے، جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ تھا اس میں شامل تھا، ان کو واپس کر دے یا ریلیز کر دے، اور دوسری بات انہوں نے یہ کر دی کہ افغانستان اس دوران جو ہے وہ افغانستان کے مسئلے کا جو پرامن حل ہے وہ ڈھونڈ نکالیں گے۔ یہ ان کی اسٹریٹجی مجھے یہ لگتی ہے کہ اشرف غنی حکومت چاہتا ہے کہ طالبان کو مجبور یا لیور کیا جائے کہ وہ بزور بندوق قبضہ کر لے کابل پر، کیونکہ اب اشرف غنی کا تو اپنا کوئی پولیٹیکل فیوچر یا سٹیکس نہیں ہے، البتہ ان باقی گروپس کا ہے، تو وہ دنیا کو یہ پیش کرے گا کہ تاکہ طالبان لیجیٹیمیسی اور ایکسیپٹیبلٹی کا جو ان کی ولنریبلٹی ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے، اور وہ پھر دنیا کے سامنے دوبارہ ان سے وہ جو بلیک لسٹ سے وہ نہ نکل سکے اور ان پر اسی طرح پابندیاں ہوں۔ لیکن وہ طالبان اس کو سمجھتے ہیں، اور وہ صرف پیریفریز پر یا انہوں نے گھیرا تنگ کر دیا ہے، لیکن وہ کابل پر بزور بازو قبضہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارا پہلا جو مشکل تھا وہ اس ایکسیپٹیبلٹی اور لیجیٹیمیسی کی وجہ سے تھا۔ تو ابھی میرے خیال میں کہ وہ نیگوشیشن سیٹلمنٹ کی طرف ضرور جائیں گے، اور افغانستان میں میرے خیال میں کہ کوئی سیول وار یا اس قسم کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ البتہ یہ ہے کہ ابھی امریکہ نے کچھ حملے کیے ہوئے ہیں، ان کے B-52 بھی نظر آئے ہیں، اور ادروائز گراؤنڈ پر بھی دیکھے گئے تاکہ ان کو ڈسلاج کیا جائے ان علاقوں سے جن پر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ صحیح۔ اچھا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اور دیکھا بھی گیا ہے ماضی میں جب حکومت رہی ہے طالبان کی افغانستان میں، تو امریکی جنگ کے دوران جب 9/11 کے بعد وہاں پر امریکہ آیا تو کافی چیزیں تبدیل ہوئیں، بہت سارے امور تبدیل ہوئے، معمولات زندگی میں تبدیلی آئی، اور تھوڑا سا ماڈرنائزیشن ہم نے دیکھا کہ وہاں پر لوگوں میں یہ تبدیلی دیکھی گئی کہ وہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے نظر آیا اور اسی طرز زندگی کو اپنانے کے خواہش مند بھی ہے۔ لیکن جس طرح سے اب طالبان کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر وہ طالبان وہاں کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں یا طالبان باقاعدہ طور پر اپنا انتظام سنبھال لیتے ہیں، حکومت قائم کر لیتے ہیں، تو جو ان کا طریقہ کار ہے، جو ان کا طرز حکومت ہوگا یا جس نظام کی وہ بات کرتے ہیں شریعت کے نفاذ کی، تو کیا تمام تر چیزیں اس کے مطابق ایک مرتبہ پھر تبدیل ہو جائیں گی؟ سب کچھ اسلام کے حساب سے ہی دیکھا جائے گا، نفاذ شریعت کے مطابق ہی ڈھال دیا جائے گا، اور ایک مرتبہ پھر جس طرح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح کے نظام میں خواتین کے لیے بہت سختیاں بڑھ جاتی ہیں، وہی تمام تر مشکلات درپیش ہوں گی انہیں، یا کچھ
आप सहल पसंदी देखते हैं? कि तालिबान ने इस दौरान जो 20 साल लड़ी है और इसके अलावा जो दुनिया को देखा हुआ है, तो वो भी मुख्तलिफ मुल्कों में गए हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडरशिप, डिप्लोमेटिक तौर पर अदरवाइज फाल रहे हैं। तो इस दफा इस चीज को अपनी जो उनकी कमजोरी है या जिसके तौर पर दुनिया उन पर उंगलियां उठाते हैं या तहफ़्फ़ुज़ात है दुनिया के, इसको वो जरूर एड्रेस करेंगे, क्योंकि अगर इसको वो एड्रेस नहीं करते तो मॉडर्न दुनिया के साथ और दूसरा जो उन्होंने बाहर दुनिया को देखा हुआ है उसके साथ चलना मुश्किल होगा। दूसरी बात तो ये आ जाती है कि अभी जिन इलाकों पर उन्होंने कब्जा किया है तो उसमें इस किस्म की कोई मुदाखलत उन्होंने नहीं की है। जो स्कूल है या इसके अलावा औरतों का तालीम है या जो उनका नौकरी का वो है, उनको खुला रखा हुआ है, उनको पर किसी किस्म की कदगन उन्होंने नहीं लगाई है। तीसरी बात यह आ जाती है कि वहां पर कानून क्या होगा, आईन क्या होगा, उसके क्या खद्दोखाल होंगे, वो तो जाहिर है जब मुआहिदा होगा तो उसमें सामने आएगा, क्योंकि वो खुद भी अफगान हुकूमत भी मानता है कि अफगानिस्तान का आईन जो है कोई 80 से 85% इस्लामिक है और ये जो 10-15% है ये जमहूरिया और या मगरबी या उस तरफ का है, तो उस पर तो एडजस्टमेंट हो सकती है 10-15% से। और अदरवाइज अफगानिस्तान की सोसाइटी के ओपननेस आया है, लेकिन इतना भी नहीं आया हुआ है कि वो ट्राइबल सिस्टम से वो निकले हों, क्योंकि ट्राइबल सिस्टम में भी तो ये चीजें शामिल होती है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई उसको इस एंगल से देखता है कि वेस्टर्न का जो निज़ाम है जहाँ पर कि फैमिली सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है, बाप का खाना उन्होंने निकाल दिया है, वहाँ पर बच्चों के बारे में जिस किस्म की आज़ादियाँ हैं या बाकी जो आज़ादियाँ वहाँ पर है जिसको खुद भी उससे वो तंग है, अगर उस नज़र से, उस बाइस नज़र से या लिबरल या सेकुलर की नज़र से उसको देखते हैं तो उस पर फिर उन गुमान नहीं किया जा सकता कि वो बिल्कुल उस तरीके से आज़ादी देंगे या उस किस्म के तब्दीली वहाँ पर आ जाएगी। ये अदरवाइज भी इवन पाकिस्तान में भी इस किस्म का ठीक है एक ट्रेंड शुरू हो चुका है, लेकिन ये ट्रेंड बहुत महदूद है, तो मैं नहीं समझता कि ये चीज आएगी। तीसरी बात ये कि मेरे ख्याल में इन चीजों का जब मुआहिदा होगा तो इन चीजों को वो शामिल करेंगे कि औरतों के क्या हुकूक होंगे, बच्चों के क्या होंगे, और इसके अलावा तालीम का क्या निज़ाम होगा, और जो एम्प्लॉयमेंट सिस्टम होगा उसमें क्या कोटा सिस्टम होगा। किन अब भी वो ये समझते हैं, क्योंकि हमने जब सोहेल शाहीन साहब के साथ बात होती है या सुनते हैं उनको, तो वो भी कहते हैं कि नहीं, हम इन चीजों में कोई अमल दखल नहीं करेंगे, अलबत्ता जो वो निज़ाम होगा उसको निज़ाम को लागू करने के लिए वो चीज जरूरी होती है। और हमने देखा है कि तालिबान जब हुकूमत में थे तो 3 चीजें अफगानिस्तान में आ चुकी थी जो कि उसके बाद दोबारा बहुत बुरे तरीके से वो बिगड़ गई। एक तो उन्होंने डीवेपनाइजेशन बहुत जबरदस्त तरीके से कर रखा था सोसाइटी में। दूसरा, उन्होंने ड्रग्स को बिल्कुल खत्म किया था, जिस पर अंडरवर्ल्ड बहुत नाराज था। और तीसरा, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, ठीक है एक डिटरेंट था, सख्त लॉ था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसे कंट्री में जहां पर सेंट्रल हुकूमत न हो, जहां पर अदरवाइज भी चीफ्टन्स हो, वारलॉर्ड्स हो, उनको लॉ एंड ऑर्डर में बांधना, अमन लाना, मेरे ख्याल में ये बड़ी बात थी। अगर उस तरीके से वो साफ तरीके से इन चीजों को इंश्योर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में उनका इमेज और वो जो अफगानिस्तान का अदरवाइज तरक्की है वो काफी आगे बढ़ेगा, क्योंकि उनमें पोटेंशियल्स हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपसे कुछ मजीद सवालात हैं जिनके जवाबात जानना चाहेंगे। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। क्या आप इमिग्रेशन की राह में हायल रुकावट से परेशान हैं और आपको खानदान के अफराद की अमेरिका में मुस्तकिल सुकूनत के लिए मुश्किलात का सामना है, तो हम बनेंगे आपके मददगार। आप अमेरिका की किसी भी रियासत या शहर में रहते हैं, हम करेंगे आपकी कानूनी मुआविनत। इमिग्रेशन के मामलात के लिए हमारे पास मौजूद है माहिर वकला की टीम। तो अभी राब्ता कीजिए
424-270-6677. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अफगानिस्तान की कुछ सूरत हाल के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर महमद, माहिर बैनुल अफ़गान उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि जिस तरह हमने अफवाज की वापसी का तरीक़ाकार देखा और जो अमरीका ने डेडलाइन दी थी कि जी 11 सितंबर तक तमाम तर अफवाज अपनी वापसी को यकीनी बनाएंगे, उस पर अमल भी यकीनन जारी है। एक बड़ी तादाद अफवाज की वापसी का रास्ता इख्तियार कर चुकी है, लेकिन जिस तरह तुर्की का मामला इस वक्त हम देखते हैं और तालिबान तुर्की की फ़ौज को अपनी सरजमीन पर देखने के ख्वाह नहीं है, तो तुर्की और तालिबान के दरमियान क्या अफ़गान सरजमीन पर क्या किसी किस्म का कोई नया तनाज़ा खड़ा हो सकता है? क्योंकि तुर्की ये समझता है कि जो मुआहिदा अमरीका के साथ उसका हुआ है, तो अफ़गानिस्तान पर, अफ़गान सरजमीन पर तुर्की की अफवाज की मौजूदगी तुर्की के सदर के हिसाब से ज़रूरी समझी जाती है। काबुल में उनकी मौजूदगी ज़रूरी क़यास की जा रही है। तो क्या एक मरतबा फिर किसी तनाज़े का इम्कान है इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से? देख लो, मेरे ख्याल में कि पहली बात तो ये फंडामेंटल या प्रिंसिपल बात तो ये है कि कोई भी गैर मुल्की फौज हो, अगर वो किसी चीज की डिप्लोमेटिक इनक्लेव की या उनकी हिफाजत चाहता हो, कोर की, या इसके अलावा एयरपोर्ट की जहां पर इंटरनेशनल लोगों का आना जाना हो या उनके लिए सेफ पैसेज हो, और या किसी मतलब है कि कहीं पर क्लेमिटी भी आ जाती है, जलजला आ जाता है, सैलाब आ जाता है, या और कोई बात अब हो जाती है, तो वहां पर भी अक़वाम मुत्तहिदा की फौजी जाते हैं मुख्तलिफ मुल्कों से और वहां पर वो ड्यूटी अंजाम देते हैं। लेकिन बहरहाल अगर हम देखते हैं तो अफगानियों की सही की गैर मुल्की अफवाज के लिए मुनासिब उनका न रवैया है और न उनकी तारीख में ऐसी चीजें मिलती है कि उनको वेलकम करते हैं या उनको वो अच्छे स्पिरिट में वो लेते हैं। एक तो ये बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब वो तो तालिबान ने जाहिर है कि अमेरिका और नाटो से बड़ी मार भी खाई है, बहुत ज्यादा उन पर मतलब है कि जितने बमबार, जितना उनका वार मशीन था वो इनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। तो उनका प्रिंसिपल स्टांस ये है कि वहां पर एक गैर मुल्की भी न रहे, और जाहिर है कि तुर्की नाटो का हिस्सा है। दूसरी बात ये है कि जहां तक उनकी हिफाजत का ताल्लुक है, तो डिप्लोमेटिक कोर का या इसके अलावा गैर मुल्कियों का, वो एक्सपेट्रिएट्स का या उनके मफादात का या उनके अपने एयरपोर्ट्स की हिफाजत तो उनकी जिम्मेदारी होगी। अलबत्ता अगर उसको कुछ खदशात हैं, जिस तरह अमेरिका भी कोई 650 फौजी उन्होंने रखे हुए हैं ताकि उनके एम्बेसीज की हिफाजत कर सकें, इस तरह टर्की चाहता है कि वो काबुल एयरपोर्ट को महफूज बना ले। मेरे ख्याल में कि अगर तुर्की में कोई कॉन्फ्रेंस होता और एक बैनुल-अक़वामी तौर पर ये इस मसले का कोई हल निकलता तो शायद इसकी कोई गुंजाइश निकल आती, लेकिन शायद तुर्की ने तालिबान को इतना एंगेज नहीं किया है, न उस कॉन्फ्रेंस के लिए जो वहां पर इस्तांबुल में हो रहा था और न इस बात के लिए क्योंकि वो कैटेगोरिकली कहते हैं, तो इस बात को डिप्लोमेटिकली हल करना चाहिए था और न कि इसको ओपन करते और इनको पहले से उनका मौक़िफ़ जो बड़ा सख्त है कि हम किसी को यहाँ पर वो किसी की जरूरत नहीं है, ये सामने आता तो शायद कुछ दरमियानी रास्ता निकल आता। लेकिन अब मेरे ख्याल में ये 3 महीने 4 महीने शायद उनको कोई टेम्परेरी वो दे दे, लेकिन तुर्की के अपने भी शायद अमेरिका के साथ भी जाहिर है कि नाटो के तौर पर वो एक इंटरनेशनल किरदार अदा करना चाहता है। हर एक मुल्क अपने मफादात का, दूसरा उनके मफाद वहाँ पर तुर्कमान्स भी है एथनिक, और इसके अलावा जो वो कुछ जो मलेशियाज हैं वो भी इसी पर बिलीव करते हैं, जिसमें रशीद दोस्तम जो है वो सर फहरिस्त है। तो शायद उनको कुछ अंडरस्टैंडिंग उस लिहाज से हासिल है, कुछ एडवांटेज। लेकिन मेरे ख्याल में कि ओवरऑल जो स्क्वायर है
उसमें फिट होना उनके लिए मुश्किल होगा। अच्छा, ये बता दीजिए कि हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की, और गुज़िश्ता 2 दहाइयों को हटाकर अगर हम इससे पहले भी थोड़ा माजी में जाना चाहें तो यकीनन हमें अफ़गानिस्तान में या अफ़गान सरज़मीन पर मुसलसल जंगें ही नज़र आई हैं, चाहे वो सोवियत यूनियन हो, चाहे वो ब्रिटिश दौर की बात हो या अब अमरीका की सूरत हाल हो। तो आखिर अफ़गानिस्तान से इलाक़ाई क़ुव्वतों का क्या चाहना है, क्या डिमांड्स हैं, वो क्यों मुसलसल इस सरज़मीन पर जंग जारी रखे हुए हैं, क्या उनके मक़ासिद हैं? दुनिया को कंट्रोल करने के बड़े, आपने देखा कि पहले ब्रिटिश एम्पायर था, फिर उसके बाद उन्होंने भी 3 जंगें अफगानिस्तान में लड़ी, फिर इसके बाद रशिया था और सोवियत यूनियन ने भी तवील 10 साल जंग लड़ी, उसके बाद पसपाव हो गए। और तीसरी बात यह कि अब अमेरिका और बमाई दुनिया के सबसे बड़ी वार मशीन नाटो के साथ आया, वो भी यहाँ से पसपाव हो गए। वो आपका सवाल बड़ा वो है कि आखिर यहाँ पर है क्या। दुनिया को कंट्रोल करने के लिए उनके कुछ मकासद होते हैं। जो रशिया था उसको, या सोवियत यूनियन था, तो उसको ब्रिटिश एक फासले पर रखना चाहते थे और अफगानिस्तान को एक आउटर पोस्ट के तौर पर या बफर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे और उस पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। उस इन्फ्लुएंस के नतीजे में उन्होंने यहाँ पर फौज कशी की, लेकिन उसमें वो नाकाम हो गए। लेकिन अलबत्ता उनके साथ कुछ मुआहदे भी हुए और उस मुआहदे के तहत उन्होंने रशिया को, सोवियत यूनियन को एक हद तक फासले पर रखा। तो ये एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस या आप समझ लें कि बफर के तौर पर रखना, ये तो उनका मकसद। सोवियत यूनियन का ये था कि वो एक ग्लेशियर की तरह फैलता था और वो गर्म पानियों से तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, और गर्म पानियों तक पहुंचने के लिए जो उनको रास्ता नजर आता था वो अफगानिस्तान था, क्योंकि वहां पर उनके तर्ज की परचमीज और खलकीज उसके जहन भी रखते थे कम्युनिस्ट, और वहां पर वो आकर फिर अब पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ा सकते थे और शायद वो उस तरीके से पहुंचते। तो उसको एक राहदारी के तौर पर या स्प्रिंग बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे टुवर्ड्स द हॉट वाटर। और अमेरिका जो आया, तो अमेरिका की साइकी कुछ बहुत ही मुख्तलिफ है। वो ये है कि वो दुनिया को अपने नजर से देखता है, अपने नजर में डालना चाहते हैं और वो दुश्मन की तलाश में होते हैं। तो जब उनको दुश्मन नहीं मिलता तो वो नया दुश्मन क्रिएट कर लेते हैं। वो जिस तरीके से वियतनाम में आए, पहले फ्रांस था, फ्रांस निकल गए, उन्होंने जंग अपने सर ले लिया और वहां पर लड़ना शुरू कर दिया। फिर वहां से पसपाई हुई, फिर उन्होंने रशिया के खिलाफ सर्द जंग और गर्म जंग और ये सिलसिला जारी रखा। फिर बहुत मुल्कों में वो मुदाखलत करते थे, रिजीम चेंज वाला सिलसिला। फिर यहाँ साउथ कोरिया में चले गए, वहां पर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ उन्होंने वहां पर जंग लड़ी। इस तरीके से यहाँ पर अफगानिस्तान में आए और उन्होंने देखा कि ये लोग तो बड़े फिरोशस हैं, ये लोग तो मुजाहिद हैं, इनको उन्होंने रशिया के खिलाफ इस्तेमाल भी किया। अब ये लोग मेरे ख्याल में कि सुपर पावर के सामने खड़े हो सकते हैं, या इनमें वो जो हमीयत है या उनमें जो अकड़पन है उसको निकालना चाहते थे। और एक इस्लामी तर्ज की वहां पर हुकूमत थी तालिबान की, तो उनको इस्लामोफोबिया का भी एक फिक्र था। वो जिस तरह क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात करते हैं, उस नैरेटिव के तहत ये आए। बाकी 9/11 बहाना था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, बहुत सारे कंस्पिरेसी थ्योरी उसके बाद बारे में चल रही है। लेकिन फिर पाकिस्तान को भी मजबूर किया कि वो फाटा में फौज कशी करे और उसके बदले में पाकिस्तान को फिर कितना नुकसान मिला, अभी तक वो स्टेबलाइज नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आती हैं। और शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर महमद हमारे साथ मौजूद थे और हम कुछ बातचीत कर रहे थे अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कि एक बड़ी तब्दीली वहाँ पर हो रही है। अफवाज की वापसी के बाद कंट्रोल्स कुछ इलाकों का हुकूमत के हाथ से निकलता जा रहा है, तालिबान कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि वो काबिज नहीं होना चाहेंगे और तालिबान एक नई स्ट्रेटजी के साथ इस वक्त हमें अफगानिस्तान में कंट्रोल हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकायदा तौर पर तमाम तर इलाकाई ताउन के साथ अपने हमसाया ममालिक
کو اعتماد میں لیتے ہوئے وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں اپنی حکومت قائم کی جائے اور شراکت داری کے تحت جو اس وقت افغان حکومت موجود ہے اس کے ساتھ مل کر وہاں پر رول کیا جائے. تو کتنا ایسا پاسبل ہو سکے گا اس پر ہم یقیناً آنے والے وقت میں دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.